Okay, so Vishal, let's start ahead with your HR for HPCL. So, brief introduction from your side, Vishal. Sir, my name is Vishal Dalal. I belong to Hisar district in Haryana. My father is a farmer who is a very hardworking person, and my mother is a teacher, and she is very good at maintaining work-life balance. I have done my BTech in civil engineering from Delhi Technological University. My fourth year BTech project was use of waste rubber tire. Regarding my hobbies, I like to play badminton, and my strength includes working in a team and hard work and consistency. So, use of waste rubber tire. What did you do in that? Sir, we used waste rubber tire chips as a partial replacement for coarse aggregate in concrete, and we replaced them in 0%, 10%, 20%, and 30% respectively, and compared its properties with the normal concrete. So we found out that the compressive strength and the workability both decreases if tire chips are used. So it's better to use crumb rubber instead of tire chips in concrete. तो अभी प्रेजेंटली जो टायर होते हैं अनयूज्ड, जो आपके वेस्ट टायर होते हैं, उसको क्या करते हैं लोग? Sir, some countries have banned its disposal in landfill sites. So as of now, there is to some extent it is used in concrete surfaces, like in areas where lightweight concrete is used. So one thing is that other incineration is also done to dispose it off. So नो, बट इंडिया में क्या करते हैं रबड़ का? sir, in my opinion, I think landfill sites, they are disposed in the landfill sites only, sir. We haven't banned it yet. ओके, तो आप रबड़ का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विशाल बना सकते हैं? कैसा बनता है? Sir, I haven't studied this. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यू आर अवेयर? Yes, sir. सो आपको प्लास्टिक का आता है? कौन से मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है आपको? So mild steel, I know. Only mild steel. Cast iron, concrete? Sir, I've read about mild steel. Not even concrete? No. Okay. So आपका ये जो प्रोजेक्ट आपने किया, इसका इवेंचुअली कहाँ पे एप्लीकेशन है? Sir, since the concrete formed is a lightweight concrete, so it can be used where precast members are to be used, and where quick quick installation and quick removal is required. So in that case, it can be used. Other in roofing, in the basement surfacing also it can be used. Basements के surface आप के किस लिए. लेवल तक अपने प्रोजेक्ट को लेके गए? Sir, we did 3 tests in this. So after that, before we could further get into it, so COVID situation came and our team, entire campus was closed due to that. We could not carry it forward, sir. So we have done 3 tests in it. Or any other training you have done in your college? Yes, sir. Our minor project was on surface maintenance and surface cracking of payments, of flexible payments. We did minor project on that, sir. अच्छा, रबड़ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ जानते हो? कैसे रबड़ बनता कैसे है? I am not aware. क्या ऑयल कंपनीज का रबड़ मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन होता है जैसे HPCL का? Sir, not sure, sir. अच्छा, HPCL का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कुछ काम बताओ. Sir, HPCL is investing into biofuels. Also, it is installing solar power plant, solar plants throughout its facilities.
and it has a green R&D center that is working on different techniques on how to enhance the processes and inculcate the use of renewable resources. Also, HPCL has a subsidiary of HP Biofuels, which is dedicated towards production of biofuels, sir. ओके, सो विशाल, लेट मी गिव यू द फीडबैक। देखो, अगर इंट्रोडक्शन में ही आपने बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन किया है तो आप समझो वो सब कुछ पूछेगा उसमें से। हाँ सर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर गूगल आउट करोगे ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, हाँ सर, रबड़, कंक्रीट, माइल्ड स्टील, प्लास्टिक, तो सारे आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। उन सब को एक बार देखो, रबड़ के बारे में सब पता कर लो, कितने टाइप का रबड़ होता है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, वेस्ट रबड़ टाइप का कहाँ यूज करते हैं, ग्लोबली कहाँ यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या आगे किया जा सकता है इसके ऊपर काम, और ऑयल कंपनीज एंड रबड़ के बीच में क्या रिलेशन है। पूरे का पूरा इंटरव्यू प्रोजेक्ट के ऊपर भी चल रहे हैं IUCL में, पूरा इंटरव्यू। प्रोजेक्ट पसंद आ गया उसको और उसी डायरेक्शन में ले गया। अगर वहां किसी को रबड़ के ऊपर क्रश आ गया तो पूरा इंटरव्यू तुम्हारा रबड़ पे जाएगा भाई। विशाल बोलेगा नहीं बना के दिखाओ, तुम बोलोगे नहीं नहीं सर मेरे को नहीं आता, फिर भी बनाओ तो सही, माइल्ड स्टील का बनाओ, उसके बाद कंक्रीट का बनाओ, अच्छा रबड़ क्या लगता है तुम्हें कैसे बनेगा, तो फिर वो लगा ही रहेगा उसके ऊपर। तो फिर वो तुम्हें पता लग जाएगा उसको कि तुम्हें नहीं आता। और नंबर कहाँ कटेंगे, जहां तुम रबड़ का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं बना पाए, वो नंबर कट जाएंगे, राइट। कौन ज्यादा इलास्टिक होता है, रबड़ ज्यादा इलास्टिक होता है कि कोई और ज्यादा इलास्टिक होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, राइट। एंड दिस इज हाउ ही विल गो फॉरवर्ड। और ये जो आपने वेस्ट का बताया, तो थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक डाटा इकट्ठा करो कि अभी रबड़ का हो क्या रहा है, हम रबड़ को कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और कहाँ करना चाहिए, और इससे क्या एनवायरनमेंट, क्या पोल्यूशन इससे हो सकता है, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, वो चीजें, राइट। तो प्रोजेक्ट को अगर इंट्रोडक्शन में बोल दिया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन। सर वही नहीं पता होता ना सर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट पे। यार रबड़ का तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो विशाल तूने वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेरे को लगता है मैराथन वीडियो भी नहीं देखा मेरा, देखा नहीं है ना अभी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स का मैराथन वीडियो तो देख ले, उससे काम चल जाएगा, उसका बेसिक्स तेरा तैयार हो जाएगा ना। उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बड़े क्लियरली बनाया हुआ है। ये कंक्रीट, कंक्रीट तो सिविल इंजीनियरिंग का मेन चीज है ना यार। कंक्रीट होती है, स्टील होती है, स्टील का बना, कंक्रीट का बना, कास्ट आयरन का बना, प्लास्टिक का बना, रबड़ का बना, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के। तो अभी तो मैंने हिस्टेरिसिस लूप नहीं पूछा तेरे से रबड़ का। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है तो वो तो तेरे को फिजिक्स में भी जाएगा कि हिस्टेरिसिस लूप बना दे भाई रबड़ का। कैसा रबड़ होना चाहिए, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया बड़ा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, रबड़ कैसा होना चाहिए। अच्छा, रबड़ और जो टायर होता है, चारकोल का जो रोड है, रबड़ है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, और कंक्रीट और रबड़ में कितना होता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं निकाल रहा हूँ ना मुंह से, ये फीडबैक के बेस पे आए हैं कि पिछले टाइम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई एक टायर जो होता है रबड़ का क्यों बनाते हैं, और जो रोड होता है वो चारकोल का क्यों बनाते हैं। सर इससे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, नहीं सर नहीं पता। ठीक है, तो कंक्रीट और रबड़ में क्या होता है, फिर कंक्रीट का रोड क्यों बनाते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। कंक्रीट का रोड क्यों बनाते हैं हम चारकोल का नहीं बनाते हैं, उसमें तो स्किड हो जाएगी गाड़ी, क्यों बनाते हैं फिर भी। तो आप बोलोगे सर वो जो है वहां पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो जो रबड़ है, जो आपका चारकोल है, वो पानी टॉलरेट नहीं करता और रोड खराब हो जाते हैं। कंक्रीट जो है वो पानी में स्ट्रांग होता जाता है। ऐसे ऐसे फिर आगे लिंक बनाता जाता है ना क्वेश्चंस के। हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है दिशा, हाँ तैयार सर करो। एक चीज पूछनी थी, ये वाले लेक्चर की सर वीडियो मिल सकती है क्या, ये हाँ वाली तो की? डलती है ना, पैनल पे डलती तो है सबकी, कल डलेगी ना, इसको प्रदीप से पूछना था। अच्छा अच्छा। नहीं डलेगी और तो सर प्रदीप से पूछ लेना। हाँ ठीक है, एक चीज और सर, आपका एक क्वेश्चन था कि लाइक इफ किसी हाउस होल्ड में हम यूज कर रहे हैं किसी और कंपनी का गैस सिलेंडर, तो हम उसे कैसे कन्विंस करें कि हम HP का वो यूज करें। किसी तो हाउस सर होल्ड में ना, तुम्हारे घर में हो रहा है, यूज हो रहा है। क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे घर में जो यूज हो रहा है वो भाई साहब BPCL का यूज हो रहा है, भारत पेट्रोलियम का, हाँ सर। और तुमने इंडेन लगाना है तो कैसे लगाओगे।
बड़ा सिंपल है, मम्मी को जाके बोलेंगे मेरी नौकरी लगने वाली है इस कंपनी में, चेंज कर दो, तो कर नहीं देंगे वो चेंज, घर वाले। बोलना मैं बोलूंगा कि इस कंपनी में मेरी नौकरी लगने वाली है और ये कंपनी है जो मेरे को जॉब देने वाली है और मैं इसमें मैं एम्प्लॉय हूँ, तो आप इसका लगवा लो सिलेंडर, सिलेंडर अच्छा है, तो लगा ही देंगे वो। और फिर तुम प्रेज करोगे कि सबसे बड़ी कंपनी है। अब उसमें ये स्पेसिफिकेशन पूछेगा कितने किलोग्राम का, बीपी का कितने किलोग्राम का है, आईयूसीएल का सस्ता किसका है, महंगा किसका है, वो डिटेल में जाएगा। हाँ सर, हाँ वो एक किसी इंटरव्यू में इसी स्पेसिफिक आपने पूछा था। पूछा हुआ है इसमें, तो कर लो, उसको तैयार कर लो। और राइट। सर अगर कोई और पूछ ले तो उसका सर, कि किसी और के घर में लगवाना हो तो? तो तुम रेट पता किए, मैंने उसमें काम दिया था, उसको रेट पता करो सिलेंडर्स के। सर सबके सेम ही दिखा रहा था सर नेट पे तो। तो किस सेम है क्या? पता नहीं सर, 890 कुछ है, सबका ही सेम ही दिख रहा था सर। अच्छा, तुम कन्विंस कराओगे उसको, मार्केटिंग सेल्स है तुम्हारी, तुम यही बोलोगे। देखो ऐसे ऐसे तो तुम किसी के घर नहीं जाओगे ना। और हाँ हाँ वो सर। अगर किसी के बेचने जाओगे तो इंसेंटिव प्लान के साथ जाओगे। इंसेंटिव प्लान कि हमारी सर्विसेज अच्छी है, एक दिन के अंदर एश्योर करवा देंगे। आप ये बोलोगे सर पहले मैं पता करूंगा कि सर्विस हमारी ठीक है कि नहीं है, टाइम पे डिलीवरी है कि नहीं है, क्योंकि किसी भी मार्केटिंग वाला आदमी जब किसी के पास जाता है ना, तो अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को पहले कंफर्म करके जाता है, ऐसे नहीं जाता। सोचोगे तुम्हारा तो सिलेंडर की सप्लाई नहीं है उस एरिया में, तो तुम वहां बेचने कैसे चले जाओगे? हाँ सर हाँ। तो पहले तुम एश्योर करोगे कि तुम्हारी सर्विस और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो सही है। अच्छा। फिर सही है तो तुम्हें पॉइंट मिलेंगे बेचने के। कन्विंस तो तुम कर लोगे, लेकिन तुम्हें कुछ पॉइंट्स चाहिए। वो सर वो पॉइंट मेरे को ढूंढने हैं बस। पॉइंट किस बेस पे ढूंढेंगे कि मेरी सप्लाई कहाँ है, जो मेरा सप्लायर हो कहाँ, तो कुछ इंसेंटिव देंगे उसको। जैसे पिज्जा नहीं बोलता था कि अगर आधे घंटे के अंदर नहीं आया तो पैसे वापस। नहीं, वो क्या था, तो बोलो अगर एक दिन के अंदर सिलेंडर नहीं आया तो भाई साहब सिलेंडर मुफ्त। तो बोलो कुछ सर ऐसे इंसेंटिव प्लान देने पड़ेंगे हमें फिर। वो तुमसे ये पूछ रहा है ना बेचोगे कैसे, तो बताओ यार उसको उस तरीके से तरीके हैं। पहले सर्विस और प्रोडक्ट देखो अपना। ठीक है।